And we are live. Assalamu alaikum. Welcome to Business Hot Seat with Hina Iqbal. Whoever is watching me first time, let me introduce myself. I'm Hina Iqbal. I'm originally from Pakistan. I'm living and working in UK from past 18 years. By profession, I'm a qualified social worker and now I'm a proud digital business owner too. आज की जो मेरी बिजनेस हॉट सीट की गेस्ट है मेरी बहुत प्यारी सी बिजनेस पार्टनर ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका शी इज़ अ मॉम ऑफ टू एंड आज हम उनसे सुनेंगे उनकी रियल लाइफ स्टोरी कि उन्होंने ये बिज़नेस क्यों ज्वाइन किया और उनकी अब तक क्या सक्सेस स्टोरी है सो लेट मी वेलकम इकरा जी ऑल द वे फ्रॉम यूएसए अस्सलाम वालेकुम इकरा जी Assalamualaikum, Mina. Thank you so much for having me here. Thank you so much, Ikraji, for giving me your time. And now we're gonna share your story with our followers You're and putting me audience. on limelight. So, Thank Ikraji, if you you. don't mind introducing yourself and sharing where you're from and why you started this amazing business. Definitely, I can share with you. So my name is Ikra Qureshi. As Hina has already mentioned, I am currently residing in Virginia, United States. Originally, I am from Karachi, Pakistan. I have achieved my bachelor's degree from NED University in electronics engineering. So, but when I came here, I never pursued this field. I got married and then I got a baby. So like mommy duties come first. So I left everything, but obviously I have something inside me just waking me up that do something, like little bit maybe part time, just do something. So it always pushes me, so do something. So I just started with the substitute teaching. So that was very flexible. My husband's hours matches, and he used to stay at home like 2 or 3 days a week, and then he works on the weekend. So I left my daughter with him, and then I go for substitute teaching. So it's very quite flexible for me. I did it for a few years, but when we want to buy a house, we have to show the solid finances, solid income. Then I switched my job to, like full-time position. So that was a really hard time, like about 8 to 9 months, I have to put my daughter in daycare. So that was a frustrating and challenging time for me. And, I used to always think about her that what she's doing there, is she missing me? Has she eaten something? Or, like she was always at home and now suddenly she's going, like it's not her even preschool age. She was like 3 or something. So, and then COVID hit, and then luckily we all sat at home. It was, everything went online. Then I, got a work from home position, like remote position. So I thought maybe, it's the best opportunity for me. I just grabbed it. But suddenly I realized that even I'm working from home, I have to plug in front of my computer for good 8 to 9 hours. It's there's no like kind of thing that you're working from home so you have like flexibility. No, I have to be there at front of computer. I have to attend my morning meeting at 8 a.m. and I can just sign off at 5 p.m. So it seemed like going outside. I think that being at home, I have to look after a lot of things along with my job. My Yes. kid and the kitchen and the laundry and everything was together and my job, and there's so much pressure on me. But when we go outside, I think we just care about our job and then we come back home and start resuming our work. But that was also challenging for me, and still I'm working from home as a full-time insurance. I work in I'm a client manager in insurance firm, so I'm also working and that full-time position right now along with this business. So I can still see those challenges that I have to meet the deadlines. I have to be like wake up at 7 and be front of my computer at 8, like no matter what. I have to report my manager supervisors ahead of time if I want to take PTO, if I want to take vacation. So I have to look after all these things still to the date. So that's why when I was expecting with my second baby, then I give it a thought that why not have a plan B in life? Maybe, I don't want to quit my job right now because still I'm working from home. That's a good perk that I don't have to leave my, little one at daycare. But still, I was looking for a plan B that in future might, like allow me to quit my job. So I need to establish something in a system, a foundation, or a business could, give me that thing. So I was looking for different options online. And then suddenly I just came across my mentor's Ed, and I thought like, who is she and how is she running her business from her kitchen? And is this really possible? Like just like she's saying that working 2 to 3 hours a day and she's making solid income. So I was like mesmerized by that all those features, and I immediately talked to her. I connected with her, and I just took my decision in 4 days, and she was also amazed that
I took my time before, trial period. I do my research and everything. I was a little bit skeptical, scared, just like every other person out here. So then when I jumped into the system, I was there. I said, no, I have to do it. There's no way I'm going back and taking refund or backing. And I'm just in front of you as a digital business owner. And mashallah, it's been 2 years now. So I'm proud that I'm, part of this business. थैंक यू सो मच शेयरिंग दैट विद माय ऑडियंस। और बहुत सारी मदर्स और फीमेल इससे टोटली एग्री करेंगी कि हम लोगों को बीइंग एज अ वाइफ एंड अ मदर बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली अपने करियर्स को गिव अप करना पड़ता है व्हेन वी मूव फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम आवर कंट्री टू अनदर यूरोपियन कंट्री और अदर अमेरिकन कंट्री। तो फिर हमें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं और वो हम अपना करियर भी परस्यू नहीं कर सकते। बट Definitely. आफ्टर चाइल्ड बर्थ उससे भी ज्यादा फिर बीइंग Yes. एज अ फर्स्ट टाइम मॉम आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बच्चा बन जाता है ना, फिर आप अपनी बिल्कुल, जॉब बिल्कुल, सारा कुछ definitely. भूल जाते हो। सो इकरा, आपकी स्टोरी सो फार इज वेरी इन आई विल से दैट इन इनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग टू, कि आप अपनी एक जॉब के साथ अपना बिजनेस रन कर रहे हो एंड यू मैनेज everything around with 2 kids too. So I Alhamdulillah. really appreciate that. So if you don't mind sharing your first income you generate from this business, और उसके साथ आपके क्या sentiments थे, कैसा आपको feel हो रहा था? So first income, like I was lucky that within first 3 months, like within first like 2 months of training and 1 month of advertising, I started getting the results, and I started getting, the people who are interested and want to take the next step and everything. So I got like really good results. But in first 3 to 4 months, I got, my first check, and that was like I was surprised. I was amazed that I have done this. Like I was very positive about the system, but my mind was ready for everything. जैसे होता है कि शुरू में आपको thoughts आती है कि पता नहीं कितना टाइम लेगा, क्योंकि बिजनेस है ना, इट्स नॉट अ जॉब कि आपको एक सर्टेन अमाउंट पे चेक आपको एवरी मंथ मिलेंगे, तो आपको आइडिया होता है कि मुझे इतना पे चेक मिलेगा। बट बिजनेस की पोटेंशियल टोटली डिफरेंट होती है। फर्स्ट मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस था जो मैंने स्टार्ट किया है, first business in my life, and I took time from my husband and just give me 1 to 2 years and I will prove you that I have taken the right decision. आप मुझे बस 1-2 साल ना कुछ नहीं पूछना। तो मेरे लिए वो फर्स्ट चेक जो था ना, मेरा वो प्रूफ था टू शो हिम एंड टू प्रूव माई सेल्फ दैट यस आई एम द पार्ट ऑफ द राइट प्लेटफॉर्म, आई हैव मेड द राइट डिसीजन। वो मेरी खुशी का आलम ठिकाना नहीं था मेरा जब मेरे बिजनेस चेक मेरे घर पर डिलीवर हुआ, एंड इट वाज worth like $1,700. So it was like more than $1,000. तो वो मेरे लिए बहुत था कि I was expecting कि maybe शुरू में like couple of hundreds भी आ जाएंगे ना, so I'm happy. So it was more than $1,000. That was my first business check, and I was so surprised and I was so happy as well कि एकदम से back to back, I got like my business partners, and मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी क्विकली एक ट्रांजिशन आएगा। मैं तो अभी ट्रेनिंग फेज में ही थी, अभी तो मैंने एड चलाना शुरू किया था, एंड देन आई माई ट्रस्ट एंड माई बिलीफ एंड सिस्टम एंड एवरीथिंग लाइक बहुत डीप हो गया, वो ज्यादा हो गया कि नहीं ये वाकई में एक बेहतरीन सिस्टम है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। और अब हर दफा के साथ आपको एक्स्ट्रा एनर्जी आती है आपके अंदर कि मैं अब इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट एक्स्ट्रा एनर्जी आई विल पुट इन इट एंड आई विल गेट मोर ग्रेट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। तो मेरी लाइक आई कैन नॉट, मैं अभी भी ना लाइक मुझे बयान नहीं कर पा रही हूँ, बट आई वाज But रियली we can see एक्साइटेड। you are blushing, you're all या red. सो But मेरी you मेंटोर sure? इतना खुश थे, मेरे कोचेस दे वर सो हैप्पी दैट लाइक दे आल्सो यू डिजर्व दिस, तुमने मेहनत करी, तुमने ट्रेनिंग को सही से समझा। बट द की इज हियर दैट आपको ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लेना है। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस में आए और आपने बोला कि बस खुद ब खुद सारे काम हो जाएंगे और मेंटोर करा देंगे और कोचेस हैं हमारे। obviously they are there for you, they are your main support, they're pillars of your business। लेकिन जो आप भी एक पिलर हो बिजनेस का, 4 पिलर्स होते हैं ना एक चीज को खड़ा करने के लिए, पूरे बिल्कुल। घर को दीवार को एक फाउंडेशन बनती है। तो एक मेंटोर है, एक कोच है, एक आप और एक ट्रेनिंग है। तो अगर आप उसमें से गायब हो तो ट्रेनिंग मेंटोर और कोच मिलकर आपके बिजनेस को नहीं संभाल पाएंगे, बिकॉज योर विल पावर हैज टू बी देयर। So Yes. if you take the training seriously from day one, not like कि 1 महीने बात कर लेंगे, अभी तो start किया है, अभी तो कुछ नहीं। Day one से seriously लो, follow the instructions, follow the protocols, follow the training, follow what your mentor and coach is asking you to do, follow it thoroughly। इस मतलब मैंने जो एक बात बहुत अच्छी कहीं पे पढ़ी थी और किसी मास्टरमाइंड में, हमारे कोचिंग मास्टरमाइंड में सुनी थी कि work on your business like a job until it gives you return like a business। तो शुरू में अपने बिजनेस को आप बिल्कुल ऐसे लेके चलो
जैसे आप जॉब करते हो कि आप कैसे अपने सुपरवाइजर और अपने मैनेजर को अकाउंटेबल होते हो कि नहीं जी यार 8 बजे साइन इन नहीं करा तो फिर इट्स नॉट गुड, मेरी सैलरी डिडक्ट होगी या मुझे जवाब देना पड़ेगा कि मैं 1 घंटे से ज्यादा मैंने ब्रेक क्यों ली, मुझे काम डेडलाइन जो है वो पूरा करना है, कंप्लीट करना है टाइम पे. सो जस्ट बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन फॉर योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, यू आर योर ओन बॉस. यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप पर डंडा रखो, अपने आप को जो है जस्ट बोलते रहो कि बस ये करना है करना है करना है. So then it's gonna give you the results of business. So work it on your business like a baby, like you're doing a job under someone. तो अपने आप को खुद अकाउंटेबल बनाओ. अब तो मैंने वो किया और फिर इसलिए मेरी सक्सेस पे मेरे मेंटोर्स और मेरे कोच मुझसे ज्यादा खुश थे, बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर इट कि बस इसका कुछ हो एंड इसका पे चेक्स आना शुरू हो, इसकी इनकम शुरू हो. So that's their victory as well. That was my victory, and I can still remember that day when I received my first paycheck, and my daughter was bringing, running from the mailbox and "Mama, Mama, check! Mama, your check is here!" And it was tears in my eyes, and I said, "Oh my God, it's my first check. I deposited in my bank, and Alhamdulillah." And मैं हमेशा शुक्राने की नफल पढ़ती हूँ जब मुझे चेक्स आते हैं. तो बस अल्लाह ताला हम सबकी उसमें बरकत डाले, and yeah, that was the आमीन moment आमीन for me. आमीन. सो आमीन. मैं चाहूंगी कि अल्लाह ताला आपको ऐसी कामयाबियां मजीद आगे बढ़ते रहें आप. और आपने इसमें मेरी बहुत सारी जो मेरी सिस्टर्स हैं जो देख रही हैं, वॉच कर रही हैं, और उन सबको एक ही क्वेश्चन होता है कि जी इनकम कम जनरेट होना शुरू होगी. उनका ये तो क्लैरिफाई कर दिया कि काम करोगे तो इनकम आएगी, सोचोगे और बाद बिल्कुल में टाइम वेस्ट करोगे तो इनकम कभी भी नहीं आएगी. कभी नहीं आएगी. तो बिकॉज सूनर और लेटर वाली बात है, आएगी जरूर, काम करेगा जरूर सिस्टम, आपने छोड़ना नहीं है. बट जर्नी हर किसी की अलग है. हिना की जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है. हो सकता है आप आए तो आप हमसे पहले आपके रिजल्ट्स आ जाए जो हमारे देर में आए होंगे मे बी. सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. वी कैन नॉट गिव यू द फिक्स्ड डेडलाइन कि आप इस मंथ में आपने इतनी अर्निंग करनी है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड हाउ यू सीरियसली टेक द सिस्टम. सो या दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो इकरा जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे बहुत सारे लोग बिजनेस के बारे में इंक्वायर करते हैं, उनको बड़ा एक किस्म का ना खौफ होता है कि स्कैम ना हो जाए. तो अगर आप उनको इसकी चीज के बारे में कुछ बताना चाहें, कोई वैल्यूएबल चीज, बिकॉज मैं तो बहुत दफा बता चुकी हूँ कि भाई एक लेजिटिमेट बिजनेस है, आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, हम आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट्स अ टैक्सेबल बिजनेस, तो देयर इज नो cap, there's nothing which is hiding behind ना. तो इवन दो ट्रायल पीरियड भी फुली रिफंडेबल है, बट आप उसको थोड़ा सा बताएं तो मे बी उनको थोड़ी इंकरेजमेंट आए, थोड़ा वो भी सीखे कि भाई बाहर निकले कंफर्ट जोन से अब. हाँ, वैसे तो आपने सारे माशाल्लाह पॉइंटर्स बता दिए जो हमारे बिजनेस को यूनिक बनाते हैं, लेजिटिमेट बनाते हैं. ठीक है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ स्कैम. वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. कोई भी स्कैमर इस तरह से सामने आके बैठकर आपसे इस तरह से ओपन होकर बात नहीं करेगा. देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी. वो आपको इस तरह से घेरेंगे, इस तरह से आपको दे जस्ट फोकस्ड ऑन सम काइंड ऑफ पेमेंट. बाय समथिंग, इन्वेस्ट योर मनी, ये मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा आपको, ये मिलेगा. हम आपसे कुछ भी डिमांड यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. आपको कोई गलत फॉल्स ये जो है आपको होप्स नहीं दे रहे हैं कि आप रातों रात कोई मिलियनर बन जाओगे इसमें आकर. नो, इट्स अ प्रॉपर, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस. आप काम करोगे, काम आपको जो है रिटर्न आपको मिलेगा. इट्स हर बिजनेस को स्टैब्लिश होने में टाइम लगता है. हम शुरू में बताते हैं, हम कभी फॉल्स होप्स नहीं देते. और हमारे पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उस पर पहले अपनी रिसर्च करते हैं. देन यू डिसाइड फाइनली कि आपको बिजनेस करना है कि नहीं करना. जैसे हिना ने बताया, वी हैव अ ट्रायल पीरियड. किसी और बिजनेस प्लेटफॉर्म में आपको ट्रायल पीरियड का ऑप्शन नहीं मिलेगा. आइदर यू जंप इन इट, आइदर यू डोंट डू इट. और उसमें आपको मेंटोर और कोच और कम्युनिटी सपोर्ट भी नहीं मिलती. आप अपने अपने ऊपर ही होते हो और अल्लाह ताला के ऊपर होते हो कि बस आपने एक नई चीज में छलांग मारी है. अब आपने खुद फिगर आउट करना है कि भाई ये बिजनेस वर्क कैसे करेगा. मे बी सम ऑफ योर फ्रेंड्स एडवाइज यू, मे बी सम अदर पीपल हु हैव डन इन द पास्ट एडवाइज यू, बट देयर इज नो प्रॉपर पर्टिकुलर कोचिंग फॉर दैट थिंग. बट इन दिस बिजनेस यू गेट अ प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर मेंटोरशिप. तो आपको हर चीज प्रोवाइड की जा रही है आपके बिजनेस को करने के लिए. तो ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है कि आपको ट्रायल पीरियड लेकर आपको रिफंड आपको मिल जाए. बिकॉज आप कोई वेबिनार, कोई सेमिनार या कोई भी वर्कशॉप अटेंड करते हो, यू जस्ट पे फॉर इट, यू रिजर्व योर स्पॉट, you pay for it, you get the certification of completion, and that's it, and that's all. But here you get the training, pre-coaching training, you get 3-hour presentation, you watch it. If you think it's a good fit for you, get inside it.
नहीं समझ आ रहा, टेक योर रिफंड, इट्स योर मनी। और आपको खुद भी जो है वो हैसल नहीं करना है कि आपने कुछ कस्टमर सर्विस से लंबी चौड़ी बात करनी है, कोई अपना रिफंड प्रोसेस कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। वी प्रोसेस योर रिफंड एंड वी मेक इट लाइक ईजियर फॉर यू, बिकॉज देयर इज एन ऑटोमेशन सिस्टम दैट इज वर्किंग ऑन आवर एंड। तो वो हमारे लिए भी कन्वीनियंट है, आपके लिए भी कन्वीनियंस है। और जो थर्ड आपने मेंशन किया, इट्स टैक्सेबल, इट्स ग्लोबली रजिस्टर्ड। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको टैक्सेबल बिजनेस आईडी मिलती है, जिसके बगैर आप वो बिजनेस रन नहीं कर सकते, आप जिस कंट्री से भी ऑपरेट कर रहे हो। सो योर इनकम इज गवर्नड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। और जहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म्स इन्वॉल्व होते हैं आपके पेपर वर्क में, जहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज आपकी इनकम को मॉनिटर कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपको टैक्सेस फाइल करने होते हैं, ऑटोमेटिकली वो चीज लेजिट हो जाती है। सो इसमें कोई दोराई नहीं कि आप अपने टैक्सेस जो है वो फाइल नहीं कर रहे, या छुप छुपा के आपको कोई इनकम मिल रही है। दैट गोज लाइक मेलिंग सिस्टम जो है हर दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेल। ठीक है, बैंक से भी ज्यादा स्टैंडर्ड जो होता है वो मेल होता है, हर कंट्री का मेलिंग सिस्टम। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जैसे यूएसपीएस, तो वो सबसे स्टैंडर्ड है, सारे गवर्नमेंट के लेटर्स हमारे मेल के थ्रू आते हैं। व्हाई डोंट दे सेंड इलेक्ट्रॉनिकली, व्हाई डोंट दे जस्ट कॉल अस एंड डू इट, बिकॉज मेलिंग सिस्टम जो है सबसे कन्वेंशनल, सबसे पुराना, सबसे ऑथेंटिक है। और हमारे बिजनेस चेक जो है वो मेल के थ्रू आते हैं हमारे मेलिंग एड्रेस पे। हम जब पेपर वर्क अपना साइन अप करते हैं, वी पुट द W9 फॉर्म विच इज इन यूएस, और यूके का अलग होगा। आप जहां भी जिस कंट्री में, वहां पे आपका टैक्स जो टैक्स फाइलिंग फॉर्म होता है वो अलग होता है। आप वो सबमिट करते हैं अपने पेपर वर्क के साथ। सो दैट्स द बिगेस्ट प्रूफ। और हम आप जो द थर्ड थिंग इज दैट, अगर आपको इसमें भी डाउट है कि अच्छा भी मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्म है, या आप मुझे कोई प्रूफ दिखाएं, once you get access to our private business group, we have a private business group and we can get you access। जब आप अपने मेंटोर से कम्युनिकेट करेंगे, आप हमारा एड देखकर आते हैं, आप वर्कशॉप देखेंगे 90 मिनट्स की, एंड आफ्टर दैट यू टॉक टू अस एंड वी अलाउ यू द एक्सेस टू आवर प्राइवेट बिजनेस ग्रुप। वहां पे आप हमारी लेजिट इनकम देख सकते हैं। वहां पे बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स ने टैक्स फॉर्म्स अपलोड किए हैं, आप वो देख सकते हैं। तो दैट इससे ज्यादा बढ़ के हम आपको क्या प्रूफ देंगे, कोई अपना टैक्स फॉर्म आपको दिखा रहा है। तो दैट्स द बिगेस्ट प्रूफ ना, कि आपकी इनकम आपके सामने रखी हुई है। हम अपने बच्चों के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करने सोशल मीडिया पे, कोई भी स्कैमर अपनी फैमिली, अपने बच्चों को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बिकॉज वी आर ओपन, वी आर लाइक ट्रांसपेरेंट हियर, देयर इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। हम आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक ही तरह से नजर आएंगे, आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म देख लें। मेरे पास मेरी दो बच्चियां हर वक्त मौजूद होती हैं, हर वीडियो में हिना की अपनी फैमिली और अपने बच्चे होते हैं। तो अगर हम कैमराज हैं, then why we are showing up our kids faces and bringing our family in front of cameras? No scammer would do that। और आपको हम कुछ भी किसी भी चीज की तरफ डायरेक्ट नहीं करते कि आप जाके बस सिंपल पेमेंट करें। नो, वी गिव यू ऑल फ्री रिसोर्सेज, ऑल फ्री इंफॉर्मेशन फर्स्ट, एंड इफ यू थिंक इट्स वर्थ पेइंग 149, देन यू कम अहेड एंड पे। आपके पास फ्री वर्कशॉप है, आप वो देखें। आपके पास जो है, हमारे पास हमसे बात करने का ऑप्शन है, कम ऑन जूम कॉल, schedule WhatsApp call with your mentor and with your coach, talk to us, bring out your concerns, bring your spouses on board। आपके अगर husband skeptical हैं, bring them on board। and third, आप इस ग्रुप में ऐड हो गए, अपने प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में हमारे, हम आपको ऐड करेंगे, वहां पे आप एक्सप्लोर करो, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें। ये नहीं कि आप बस एक कंक्लूजन पे जंप कर लें कि बस ये तो हर ऑनलाइन बिजनेस स्कैम होता है, ये तो जो हर औरत बैठ के बात करी ये सब स्कैमर्स हैं। ऐसा नहीं होता, पिक्चर इज बिगर देन दैट। यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। तो हर काम हम अल्लाह के ऊपर छोड़कर ही करते हैं अपनी जिंदगी में। हम पढ़ने जा रहे हैं, हम जॉब करने जा रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, हम अल्लाह के ऊपर भरोसा करके भेजते हैं कि बस अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर काम में एक रिस्क इन्वॉल्व है, तो आपको ये रिस्क तो हर चीज में लेना पड़ेगा। तो व्हाई नॉट पेइंग 149 इज नॉट दैट काइंड ऑफ अमाउंट जिसमें हम दूसरी दफा सोचें, बिकॉज हम जब बाहर ग्रोसरी करने जाते हैं हमारा बिल इससे ज्यादा ही आता है। व्हेन वी स्टार्ट शॉपिंग ऑन Amazon हमारा बिल इससे ज्यादा आता है। व्हेन वी स्टार्ट शॉपिंग ऑन ऑनलाइन लाइक डिजाइनर क्लोथ्स, इससे ज्यादा बिल आता है हमारा, बट वी नेवर थिंक ट्वाइस अबाउट इट कि हमारे कितने पैसे जा रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू गेट a solid legal and legitimate information about a proven business system, देन वी ऑल थिंक कि हम 149 क्यों दें, हमें फ्री में दे दें। तो वहां पे अगर हम आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो वो स्कैम नहीं होगा। लेकिन जब हम आपसे 149 जो है वन टाइम रिफंडेबल फी है, तो सबको स्कैम लगता है। बट नो, दिस इज अ लेजिट बिजनेस। आप आए, सारी फ्री इन्फॉर्मेशन लें पहले, और फिर आपको लगता है कि यस इट्स अ लेजिट बिजनेस, मेरा दिल मान रहा है, सब कुछ सही है, देन यू कम फॉरवर्ड एंड टेक द $149 स्टेप। सो इट्स वर्थ इट। आपकी अगर लाइफ में आपको कुछ चेंज करना है तो आपको ये रिस्क लेना पड़ता है हर जगह। सो आई थिंक मैं ज्यादा बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आई जस्ट आपने वांट टू बहुत मेक श्योर अच्छे से कि एक्सप्लेन किया। सबको समझ में आ जाए।
हाँ जी, इकरा, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स जो होंगे, जो चीज़ें वो अपने ज़हनों में लेके बैठे होंगे, हेजिटेट कर रहे होंगे कि पूछेंगे तो एम्बैरेसमेंट फील होगा। तो एम्बैरेसमेंट डेफिनेटली। कोई फील नहीं होता, आप जब तक पूछोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। और एक मैं बात ज़रूर अपनी ऑडियंस से हमेशा शेयर करती हूँ कि नेवर जज अ बुक फ्रॉम इट्स कवर। आप उसको रीड करो, फिर आपको पता चलेगा कि बुक जो है एक्चुअली आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तो उसके बाद अपना डिसीजन मेक करो कि जो भी है। इकरा, थैंक यू डेफिनेटली। सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दैट मच टू माय ऑडियंस। तो नहीं नहीं। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार इन दिस बिजनेस, in this business? It could be in your personal life and business, anything you want to share with my audience. मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट यही है ना कि मैं यहाँ पर आपके सामने बैठी हूँ, सो मेनी पीपल आर फॉलोइंग मी, आई एम लाइक आई माइट इंस्पायर देम इन सम व्हाट, लाइक इन सम वे। लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके मैं इस तरह से आके बात कर सकूंगी। लाइक हमेशा मैं सोशल मीडिया पर रही हूँ, आई ऑलवेज पोस्ट माई लाइक लिटिल बिट फोटोज एंड आई स्क्रोल एंड वॉच द वीडियोज एंड ऑल। लेकिन कभी मैं यूज करके अपनी आवाज को दूसरों तक पहुंचाऊंगी, एक सिस्टम को प्रमोट करूंगी, या मेरी बात कोई सुनने वाला होगा या मुझे कोई फॉलो करेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। सो दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी एंड से दैट वी आर जस्ट फॉलोइंग यू, वी जस्ट लाइक द वे यू टॉक, वी जस्ट लाइक द वे यू एक्सप्लेन। भले ही वो मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करें ना करें, still they are following me. So in some other way, I am in their subconscious, I am in their mind, and they are following me. मेरी वो बिजनेस ना करें बट उनकी लाइफ में कोई ना कोई छोटा मोटा इम्पैक्ट आ जाए मेरी वजह से। तो किसी के लिए छोटी सी भी इंस्पिरेशन बनना या उनके डिसीजंस को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करना, आई थिंक ये मेरे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट है कि मैंने कभी सोचा नहीं था। बिकॉज आई अपने आप में रहना, अपनी फैमिली, अपने घर, जॉब कर ली, ज्यादा से ज्यादा बस सोशल मीडिया स्क्रोलिंग कर ली। लेकिन आपको कोई सुनेगा बैठकर, आपसे कोई आके आपको रिक्वेस्ट करेगा हमारे इंटरव्यू दें, आप अपनी बात बताएं, आपका हमें बात करने का तरीका अच्छा लगता है। So I think these all skills have been enhanced throughout these 2 years. And this is all due to of my digital business and the training I get. मुझे इससे पहले ऐसा नहीं था कि बात करना नहीं आती थी, लेकिन क्या बात करनी है, किस चैनल के थ्रू बात करनी है, कितनी बात करनी है, क्या प्रेजेंट करना है, ये सब मुझे इस बिजनेस में आने के बाद पता चला है। इट्स नॉट लाइक कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हुई हूँ, डेफिनेटली मैं फाइनेंशियली भी मैंने काफी गेन करा है। एंड इसके अलावा मेरी पर्सनल डेवलपमेंट इज लाइक इनक्रेडिबल। मतलब मेरे अंदर जो लीडरशिप स्किल्स आई हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अपनी कोई टीम होगी। यस, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में आई डू टेक पार्ट इन ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। छोटे मोटे टीम्स होते थे, हमेशा से थोड़ा कीड़ा था मेरे अंदर, बट आई नेवर थॉट कि मैं एक बिजनेस मॉडल को प्रमोट करूंगी एंड पीपल विल इंस्पायर मी, कि ये तो दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। द स्किल्स आई हैव लर्न, द स्किल सेट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस बिजनेस, द लीडरशिप क्वालिटीज, the power of social media, and like the videos, the way I'm talking and coming out in front of camera, and leaving all my fears back कि भाई कैमरे पे आके मैं क्या बात करूंगी। So अब मुझे सोचना नहीं पड़ता, I just turn on my live and I just start talking. So that all came through this confidence has been I have gained this confidence due to my digital business training and the support of my mentor, coaches, and my team. उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया। तो एक्नॉलेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको कोई एक्नॉलेज कर रहा है ना, आपका हौसला वैसे ही बढ़ जाता है। तो इस बिजनेस कम्युनिटी में आपको बहुत एक्नॉलेजमेंट मिलती है, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, छोटे से छोटे काम के लिए भी। सो वो आपका हौसला बढ़ाती है, एंड आई थिंक दैट इज द की। आप कॉन्फिडेंट हो, अंदर से आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो, आप एक्नॉलेज हो, आपको कोई सुन रहा है, समझ रहा है। आई थिंक दैट्स द मोस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद माय ऑडियंस। वाकई ही आप देखें, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया, लाइक राइट नाउ वी आर लाइव ऑन फेसबुक, हमें हजारों लोग देख रहे होंगे। और इस चीज को सोच के ही इंसान शुरू में घबरा जाता है, डर जाता है कि मैं ऐसे बैठूंगा सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। बट एग्जैक्टली। माशाल्लाह, आपकी कन्वर्सेशन से लग रहा है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप एक सोशल मीडिया में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो थैंक शुक्रिया। यू सो मच शेयरिंग दैट विद माय ऑडियंस। अच्छा, आप अगर एक कोई ऐसा मैसेज या कमेंट 2 इयर्स में जो आपको मिला हो, जो आपको रिकॉल कराता हो, आपके अंदर एक और एनर्जी पैदा करता हो कि हाँ भी दिस इज समथिंग विच आई डन, और मुझे उसका ये कमेंट या उसका कोई मैसेज जो आपको इनकरेजमेंट देता हो, जो हैप्पीनेस देता हो।
बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स हैं, क्योंकि मुझे माशाल्लाह बहुत एप्रिसिएशन मिलती है लोगों से। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि जस्ट वो लोग नहीं जिनके सामने मेरा एड चल रहा है या जो मुझे रीच आउट कर रहे हैं, वो तो मुझे फॉलो कर रहे हैं, बट अदर टीम मेंबर्स एज वेल, दैट दे आर नॉट माय डायरेक्ट टीम मेंबर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स, बट वी आर स्टिल इन द सेम बिजनेस। तो जब वो मुझे मैसेज करते हैं या मुझे लाइव के लिए बुलाते हैं, एंड दे लाइक ऑलवेज टॉक टू मी लाइक विद सो मच एक्साइटमेंट कि हमें आपसे बात करनी थी, आपके साथ लाइव करना था, मैं आपकी वीडियोस फॉलो करती हूँ, मैं जब से इनिशियल मैंने स्टार्ट लिया है, आई हैव बीन फॉलोइंग यू एंड वाचिंग योर वीडियोस, मुझे आपका कंटेंट पसंद है। तो वो मेरे लिए बहुत एक अंदर से मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ऑब्वियसली एवरीबडी लव्स एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिसिएशन, बट मुझे एक अलग से एक अदर दोबारा से बोलते हैं कि एक और एनर्जी की लेयर आती है कि नहीं, अब मुझे और अच्छा करना है, मुझे इससे ज्यादा अच्छा करना है। तो एक बूस्ट हो जाती हूँ, मैं बूस्ट अप हो जाती हूँ कि अगर मेरा कंटेंट किसी को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो दैट्स अ ग्रेट फीडबैक फॉर माई सेल्फ, फॉर माई बिजनेस। तो ऐसा नहीं कि बस अब मैं इसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करूंगी। सो आई गो फॉर मोर इम्प्रूवमेंट, और सीखना है और आगे बढ़ना है और इम्प्रूव करना है। तो मुझे ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, योर लाइफ आर अमेजिंग एंड ऑल। तो मुझे खुशी होती है कि कोई ना कोई मेरे कंटेंट से कोई फायदा उठा रहा है, किसी को इंस्पायर कर रही हूँ। सो सेम थिंग, या क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करके इस बिजनेस में आई हूँ, फॉलो करती रही हूँ कितने अरसे तक, और अभी भी करती हूँ। तो हर चीज में, हर जगह आप जाते हो, आपको किसी ना किसी को इंस्पायर जरूर करती हूँ। तो मैं कभी किसी को इंस्पायर करूंगी, मेरा कंटेंट किसी को इंस्पायर करेगा, ये मेरे लिए मैंने कभी सोचा नहीं था। तो दैट मेक्स मी रियली हैप्पी, दैट मेक्स मी रियली लाइक अकम्प्लिश्ड, कि मैंने वाकई में कुछ अचीव करा है। along with the financial stability I have achieved all these accomplishments as well. So yeah, alhamdulillah for everything. इकरा जी, आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं? इसका भी थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को बताएं। पॉजिटिव, हाँ, थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रहूं, क्योंकि मुझे होता है कि भाई एक अल्लाह ताला ने अगर मुझे ये काम दिया है करने के लिए ना, इसके पीछे कोई पर्पस है। मैं इतने अरसे से कुछ ना कुछ ढूंढ रही हूँ, मेरे सामने ये मेरी मेंटोर की एड क्यों आई है, क्यों आई, देयर इज सम पर्पस बिहाइंड इट। मतलब मेरे सामने क्यों आई, मुझे क्यों क्लिक करी, मैंने क्यों मैसेज करा, मैंने क्यों बात करी। मेरे सामने तो बहुत सारी एड्स ऐसी आती हैं, बट आई नेवर एवर लाइक केयर अबाउट इट, बस आगे हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं। बट there was something, there was some sign from अल्लाह ताला कि वो मुझे बताना चाह रहे थे कि try to dig in it, तुम्हारे सामने एक प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर जंप करो, देखो क्या है। वो सब कुछ मेरे साथ हुआ, तो मुझे लगता है कि फिर मुझे उस पर अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, तो मैं उसकी वजह से आई स्टे पॉजिटिव। और ऐसा नहीं है कि हर चीज में चैलेंजेस होते हैं, हम आपको यहाँ पे बैठकर दिखा रहे हैं तो इट डजंट मीन कि भाई बिजनेस में सब कुछ अच्छा होता है। नो, देयर आर सम चैलेंजेस टू, देयर आर सम लाइक गुड एंड बैड डेज फॉर मी टू। मैं भी कभी डाउन होती हूँ, डीमोटिवेट होती हूँ, कभी कभार होता है, अपसेट होती हूँ, बट दैट्स फाइन, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। फिर अगला दिन आता है, फिर एक नई एनर्जी, नई सुबह, नए थॉट्स कि नहीं, अब वर्क करना है, इस पे काम करना है, जो चीज कमी है उस पर काम करना है। और प्लस आप अकेले नहीं हो, अगेन यू हैव अमेजिंग कम्युनिटी। जब हम अपना फेसबुक और अपना इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, हमारे पास सबकी अचीवमेंट्स के पेजेस हमारे भरे हुए होते हैं, और उनको देखकर हमें होता है यार वाओ, मतलब हमें भी अचीव करना है, मुझे भी ये लेवल अचीव करना है, मुझे काम करना है। सो ये जो आपको हर वक्त अपलिफ्टिंग मोड में आप रहते हो, आपकी कम्युनिटी इतनी अपलिफ्टिंग है, दैट्स द बिगेस्ट रीजन फॉर आवर सक्सेस। माशाल्लाह, जब भी हमारे मोर देन 200,000 मेंबर्स हैं हमारी कम्युनिटी में। सो इट्स नॉट लाइक इट्स बिजनेस, कभी भी इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। हम आपको कुछ प्लेट में रखकर हम नहीं कह रहे कि हम आपको दे देंगे। ऑब्वियसली देयर विल बी चैलेंजेस, सब चीजें होंगी, बट इसी के साथ आप ग्रो करते हो, इन्हीं चीजों से आप सीखते हो। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। हम सब इसी तरह होते हैं, हमारे बैड डेज भी होते हैं, गुड डेज भी होते हैं, बस यस, पॉजिटिव रहना आपका काम है। डेफिनेटली मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ सुबह में, little bit, just to thank Allah Ta'ala for all the blessings and to think positive and get all positive vibes throughout my day, कि बस आज अच्छा ही होगा मेरे साथ इंशाल्लाह ताला। So just keep that mindset, growth mindset, positive mindset, and इंशाल्लाह आपको लाइफ के हर फेज में अच्छा, मतलब सक्सेस ही मिलेगी। दैट्स व्हाट आई थिंक, और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि हर चीज में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इकरा जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया। जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज मेरी ऑडियंस के लिए जो आप उनको देना चाहें? बिल्कुल, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वैसे बातों में बहुत सारी एडवाइसेस दे दी हैं। आई होप कि सबको जो भी सुनना चाहता है, जो समझना चाहता है,
उसके लिए ये पर्पस हमारा पर्पसफुल हो, उसके लिए सुनना कॉन्वर्जेशन। बट डेफिनेटली मेरी एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग का पास एक आपके पास माइंड सेट है कि आपने कुछ करना है लाइफ में, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं पीछे, तो आप डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म को ट्राई करें, बिकॉज दिस बिजनेस इज फॉर लॉन्ग टर्म। लाइक इट्स नॉट समथिंग शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। ये आपको ये आपकी लेगेसी क्रिएट कर रहा है आपके बच्चों के लिए। तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर होना है, अपने पैसे अर्न करने हैं, एक सस्टेनेबल इनकम की तलाश में है, देन यस, टेक द फर्स्ट स्टेप, टेक द ट्रायल पीरियड। हर चीज में रिस्क इन्वॉल्व होता है, आगे आए एक दफा रिस्क लिए। जहाँ पे हम इतनी चीजें करते हैं लाइफ में, वहां पे एक छोटा सा स्टेप लेकर एटलीस्ट आप कोचिंग वीडियोस देखें, उसको समझें, अपने मेंटोर से, अपने कोच से कनेक्ट करें। एंड आफ्टर दैट इफ यू थिंक इट्स नॉट अ गुड फिट फॉर यू, यू आर गुड टू गो, यू जस्ट टेक योर रिफंड एंड बैक ऑफ। और क्या पता कि वीडियोस देखकर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, आप ये बिजनेस कर लें और आप फिर यहाँ बैठकर इंटरव्यू दे रहे हो और बोल रहे हो कि थैंक गॉड कि हमने ये डिसीजन लिया था अपनी That's लाइफ में। सो हम सबके साथ ये हुआ है, तो आप भी इसी इसी बोट का हिस्सा है। सो वी आर ऑल ऑन द सेम बोट। Thank you so much for such a good advice to my audience. And thank you once again, Ikra ji, for giving me your precious time or sharing screen with me. Hopefully, मेरी audience ने आपकी इन तमाम बातों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसमें डेफिनेटली। बहुत सारे गोल्डन नगेट्स थे जो आज इकरा जी ने शेयर किए हैं। So, आपने थैंक पिक यू। एंड चूज करने हैं। तो आज का सेशन यही तक था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ इकरा जी। थैंक यू सो मच।